انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر پارٹ 4. اس کے اندر ہم پیسیجز پڑھیں گے. جو بھی پیسیج ہے اس پیسیج کے بارے میں مختصر سے بول کر پیسیج کے نیچے کوشچنس آتے ہیں, اس کا کوشچن ہم کو پیسیج کے اندر ہی ڈھونڈ کر نکالنا ہے. آپ کا پہلا پیسیج ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں. اس کے بارے میں چند سوالات نیچے دیے جائیں گے. ان سوالات کے جواب آپ کو پیسیج کے اندر کہاں کہاں پر ہے ہم انڈر لائن کر دیں گے. آپ کا اس میں پہلا کوشچن ہے اذکر الاسماء الشہیرہ لسورۃ الفاتحہ, رائٹ فیمس نیمز آف سورہ فاتحہ. تو آپ کو ڈھونڈنا ہے اسماء الشہیرہ. تو ہم پیسیج کے اندر اس کو ڈھونڈیں گے. یہاں پر آنسر نمبر 1 ہے ومن اسماء الشہیرۃ فاتحۃ الکتاب و سورۃ الحمد و سورۃ الصلاۃ و ام الکتاب و ام القرآن. یہاں پر آپ کا پہلا کوشچن کا آنسر ختم ہوا. آپ اچھی طرح دیکھ لیجیے کہ اسماء الشہیرہ سے یہاں سے آپ کا شروع ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا دوسرا کوشچن ہے ما ہوا افضل الدعاء. تو اس کے معنی ہے افضل دعا کیا ہے. تو آپ کو جو لفظ پیسیج میں ڈھونڈنا ہے وہ لفظ ہے افضل الدعاء. تو افضل الدعاء آپ کو پیسیج کے اندر یہاں پر ملے گا افضل الدعاء الحمدللہ. ہم اوپر لکھیں آنسر نمبر 2. تو آپ کو افضل الدعاء الحمدللہ لکھنا ہے دوسرے کوشچن کے آنسر میں. اب تیسرا کوشچن ہے ما ہوا ثمن کل نعمت. ہم آپ کو ڈھونڈنا ہے ثمن کل نعمت. یہ لفظ آپ کو پیسیج میں ڈھونڈنا ہے. تو آپ کو آنسر نمبر 3 والحمد ثمن کل نعمت. یہ آنسر نمبر 3 ہے. اب اچھی طرح یاد رکھیں پیسیج کے اندر جو لفظ ہم کو ڈھونڈنا ہے وہ لفظ وہاں پر اطمینان سے آپ ڈھونڈیے, بغیر کسی مشکل کا آپ کو مل جائے گا. تو آپ کا آنسر نمبر 3 رہا والحمد ثمن کل نعمت. اب کوشچن نمبر 4 اذکر حدیثاً عن فضل القرآن. اذکر کے معنی ہے رائٹ, حدیثاً کے معنی ایک حدیث, ان کے معنی ہے اباؤٹ, فضل القرآن ایمیننس آف قرآن. قرآن کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث لکھو. ہم اچھی طرح جانتے ہیں حدیث جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو ہم حدیث کہتے ہیں. اور عربی میں ایک لفظ آتا ہے قالا. قالا کے معنی ہے سیڈ. جب کبھی ہم بولیں گے قال رسول اللہ تو معنی ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اگر ہم کہیں گے قال اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نے کہا. تو ہم کو پیسیج کے اندر یہ ڈھونڈنا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر لکھا ہوا ہے. قال رسول اللہ کوشچن نمبر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. آپ اتنا لمبا آنسر لکھیں. آپ کو اچھی طرح یاد رکھو کہ آپ کو ایک حدیث لکھنے کے لیے کہا گیا تو آپ یہ حدیث لکھیں گے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوشچن نمبر 4 ماذا قال شیخ الاسلام سیدنا محمد الحسین عن فضل فاتحہ. یہاں پر پھر ایک لفظ استعمال کیا گیا قالا. یہ بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک بات کہی ہے جس کا اس پیسیج میں ذکر ہے. تو ہم ان کا لفظ اس پیسیج کے اندر سب میں آخر میں ہے. دیکھیے وقال شیخ الاسلام سیدنا محمد الحسین المعروف کیسو دراز فی فضیلتی سورۃ الفاتحہ. تو آپ یہاں سے شروع کریں گے سمیت فاتحۃ الکتاب لانہا کاقلد اقوال الحاجات. آپ کو یہاں سے لکھنا ہے سمیت بفاتحۃ الکتاب لانہا کاقلد اقوال الحالات. اس طرح آپ کا پہلا پیسج ختم ہو چکا. اب آئیں گے ہم دوسرے پیجز کے پاس. یہ پیسج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے, ہم جب چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا اظہار ہمارے اعمال میں ہونا چاہیے کہ نبی نے ہم کو کیا کام کرنے کے لیے کہا وہ کرنا چاہیے, جن کاموں سے منع کیا ان سے ہم کو روک رہنا
करना चाहिए। सिर्फ बातों से करने से मोहब्बत ज़ाहिर नहीं होती। इस तरीके से इसमें से चंद सवाल दिए गए हैं। इसका पहला सवाल है, मा हुआ असासुल ईमान। तो आपको लफ्ज़ इसके अंदर ढूंढना है, असासुल ईमान का लफ्ज़ इस पैसेज के अंदर कहाँ है। तो पहला सेंटेंस ही है, ताज़ीबुन नबी वल मोहब्बती लहू असासुल ईमान। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहा। अब क्वेश्चन नंबर 2, माहिया अलामातु मोहब्बती। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मोहब्बत करते हैं तो उसके क्या निशानियाँ हैं। तो हमको लफ्ज़ ढूंढना है अलामाती मोहब्बती। तो आप आंसर शुरू करेंगे, मिन अलामाती मोहब्बती इत्तिबाई अक़वालिही व अफ़वालिही। इस तरीके से आप यहाँ तक नवाही के पास आप रुक जाएंगे, यहाँ तक आपका आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, मता यक्तमिल ईमान। मता के माने हैं कब ईमान मुकम्मिल होता है। तो आपका क्या ढूंढना है, यक्तमिल ईमान का लफ्ज़ ढूंढना है। यहाँ पर एक लफ्ज़ है, यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, इन्ना मोहब्बतुहु लाज़िमतुन लिकुल्लि मोमिन व बिदूनिही ला यक्तमिलु ईमानुहु। ये लफ्ज़ यहाँ तक ख़त्म होता है। तो आप शुरू करना है इन्ना मोहब्बतुहु से शुरू करके ला यक्तमिलु ईमानुहु पे आप ख़त्म कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हलल ईमान हलल इत्तिबाउ। तो इसका जवाब आप लिखेंगे नाम लिखकर, अल इत्तिबाउ लाजिमुन लिइज़हारिल मोहब्बत। यहाँ पे आंसर खत्म। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, मादा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिसय्यदिना उमर। क्वेश्चन के माने है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्या कहा। देखिए यहाँ इस हदीस के अंदर इस बात का जिक्र किया गया है कि भाई दुनिया के अंदर हम सब में ज़्यादा अपने नबी से मोहब्बत करेंगे, उस वक्त हम मोमिन नहीं हो सकते। तो हमको ढूंढना इसके अंदर पैसेज के अंदर ये ढूंढना है कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिसय्यदिना उमर कहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिसय्यदिना उमर। तो क्या कहा, यहाँ से आपका आंसर शुरू होता है ला युमिनु अहदुकुम। यहाँ से शुरू होकर अजमईन पर इसका आंसर ख़त्म हो जाता है। इस तरह आपका पैसेज नंबर 2 हो गया। अब आइए पैसेज नंबर 3। ये तेलंगाना के बारे में है कि तेलंगाना कब फॉर्म हुआ, क्या है। इसमें का पहला क्वेश्चन है, मता इनिशिएट विलायतु तेलंगाना, व्हेन तेलंगाना वाज फॉर्म। तो आपको लफ्ज़ ढूंढना है इनिशिएट का लफ्ज़ इस पैसेज के अंदर कहाँ लिखा हुआ है। सब में पहला लिखा हुआ है इनिशिएट विलायतु तेलंगाना रस्मियन फिल यौम अस्सानी मिन शहरी यूलियो। ये इसका पहला आंसर है, यहाँ से वहाँ तक अंडरलाइन कर दिया गया है। अब आंसर क्वेश्चन नंबर 2, मन हुआ अव्वलु कबीरुल वुज़रा लिवलायत तेलंगाना। इसके माने है हु इज फर्स्ट सीएम ऑफ तेलंगाना। तो आपको ढूंढना है अव्वलु कबीरुल वुज़रा। तो यहाँ पर उसी लाइन के अंदर लिखा हुआ है अव्वलु कबीरुल वुज़रा हुआ के चंद्रशेखर राव। यहाँ पर आंसर नंबर 2 खत्म। हलिल जामिया उस्मानिया। जब हल बोल के आएंगे तो आप लिखेंगे नाम लिख के लिल जामिया उस्मानिया मसात को पूरा का पूरा नाम लिख के पूरा जुमला उतार देंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मन बिनफ्सिही फी सबीलिल हुसूली अला तेलंगाना। इसके माने हैं हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना हासिल करने के लिए किन्होंने अपनी ज़िंदगियों को दांव पे लगाया। तो आप इसका आंसर में एक लफ्ज़ अच्छी तरह ढूंढना याद रखना है कि इसके अंदर ज़हा का लफ्ज़ है। इस लफ्ज़ को हम क्वेश्चन में ढूंढेंगे। फ़कसीरुम मिन तुल्लाबिहा वल आखरीन क़द ज़हू बिअनफुसिहिम फ़ी सबीलिल हुसूली अला तेलंगाना। इतना लंबा इसका आंसर है। फ़कसीर मिन तुल्लाबिहा माने so many students of Jamia University sacrificed their lives for the achievement of तेलंगाना। तो आप अच्छी तरह याद रखिए, फ़कसीर मिन तुल्लाबिहा से आप आंसर शुरू करेंगे। इसका आखिरी क्वेश्चन है बिमाज़ा तमताज़ु विलायत तेलंगाना। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक लफ्ज़ आया है तमताज़ु। तो हम
तमताज़ लफ्ज़ कहाँ पर है, इस पैसेज के अंदर नहीं है, इसके अंदर आखिर में है। देखिए, इन्ना विलायत तेलंगाना तमताज़ु बिसखाफ़ातिहिम व हज़ारिहिम मुमताज़, यहाँ तक इसका आंसर ख़त्म है। तो आप अच्छी तरह याद रखें कि इन्ना विलायत से शुरू करके वहाँ पर आपको इसका आंसर ख़त्म कर देना है। अब आइए नेक्स्ट पैसेज। ये पैसेज एक लेडी पोएटेस के बारे में है, इसका नाम है खनसा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से कुछ पहले ये पैदा हुई थी। इसके अंदर थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन हार्ड हैं, आप ज़रा गौर से इसको समझने की कोशिश करें। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, माँ इस्मु अबी खुनसा। क्या माँ के माने है वाट, हम पढ़ चुके हैं। इस्मु अबी खुनसा, नेम ऑफ फादर ऑफ खनसा। तो खनसा के बाप का नाम क्या था? तो इसके अंदर खनसा के बाप का नाम था अमर बिन हर्ष। ये नाम आपको अच्छी तरह याद रखना। देखिए, क्वेश्चन में हमको पूछा गया खनसा के बाप का नाम क्या था। आंसर में हमको दिखाया जा रहा है पैसेज के अंदर कि वो अमर बिन हर्ष की बेटी थी। तो आप याद रखेंगे, इसमें अभी खनसा लिखने के बाद ये लफ्ज़ लिखेंगे, अमर बिन हर्ष। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 का है, हलिल खनसा मिन अशहरी निसाइल अरब। तो हल का जवाब आप नाम लिखेंगे, उसके बाद पूरा क्वेश्चन उतार देंगे हल हटा के। तीसरा है, मन काना सखर। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। ये मन के माने है हु, काना के माने है वाह, सखर, ये सखर बोलने वाला कौन था? इसके अंदर इसका खास जिक्र नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर याद रखिए, आपको एक लफ्ज़ अच्छी तरह याद रखना है, काना सखर अखल खुनसा। या अखल खुनसा का लफ्ज़ कहाँ इसके अंदर नहीं है, लेकिन आप अच्छी तरह याद रखना है कि ब्रदर ऑफ खनसा। क्वेश्चन में हमको पूछा गया कि सखर बोलने वाला शख्स कौन था, तो हमको लिखना है सखर बोलने वाला शख्स खनसा का भाई था। तो आप अखल खनसा का जो लफ्ज़ है इसको अच्छी तरह याद रख लीजिए, क्योंकि ये ज़रा पैसेज के अंदर कहीं नहीं मिल रहा है लफ्ज़। अब तीसरा फोर्थ क्वेश्चन है, फ़ी अय्यी शेरिन इश्तहर खनसा। इसके माने हैं कौन सी पोएट्री में खनसा बोलने वाली मशहूर थी। तो आपको लफ्ज़ ढूंढना है इश्तहरत। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप यहाँ मिलेंगे आपको वशहरत बिशेर रिसाई, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। हम ऊपर आंसर नंबर 4 लिख दिए, उसको अच्छे तरह गौर से देख लिया कि आपको लफ्ज़ ढूंढना है वशतहरत। वशतहरत जहाँ पे मिलेगा आपको लिखे वशतहरत बिशेर रिसाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हल लहा दीवान। तो आप फिर लिखेंगे हल का जवाब, हल को हटा देंगे, नाम लिख के पूरा जुमला लिख देंगे। इसके बाद एक वाक़या है, ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में पेश आया। इस वाक़े के अंदर कुछ एक काफ़िला किसी मुकाम से आता, उस मुकाम के अमीर का नाम रहता, उनके बारे में चंद सवाल दिए गए हैं। इसके अंदर पहला सवाल है, मिन आइना जाआ वफदुन। इसके माने हैं वफद कहते हैं ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो ग्रुप ऑफ पीपल कहाँ से आए? तो पहला सेंटेंस ये है, उसके अंदर जाआ मर्रदुन वफदुन मिन अहले हिम्स। हिम्स एक इलाके का नाम है, तो वहाँ से वफद आया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मन काना सईद इब्न आमिर। ये मन काना सईद इब्न आमिर, सईद इब्न आमिर कौन थे? इसका आंसर इसके अंदर कहीं में नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। आप एक लफ्ज़ याद रखो, काना सईद। क्या अमीर हिम्स का लफ्ज़ अच्छी तरह याद रख लो आप। अमीर कहते हैं गवर्नर को। ये हिम्स के गवर्नर थे, इनकी ज़िंदगी बहुत ही सीधी सादी गुजरी, बिल्कुल सादगी से अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो इस बारे में आपको याद रखना है कि सईद इब्न आमिर बोलने वाले अमीर हिम्स थे। आप सिर्फ अमीर हिम्स का लफ्ज़ याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, मादा साला उमर बिन खत्ताब। ये क्वेश्चन के माने हैं, माजा के माने है वाट, साला के माने पूछा। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या पूछा? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब वो लोग आए, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन से पूछा था कि भाई तुम्हारा उन्होंने गरीबों के नाम लिखे थे। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आने वालों से कहा था कि तुम अपने इलाके के गरीबों के नाम लिख के दो। तो उन गरीबों के नामों के अंदर जो लोग आए थे, एक नाम लिखे थे, इस नाम था सईद इब्न आमिर। जब सईद इब्न आमिर का नाम उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा, तो पूछा उनसे कि ये सईद इब्न आमिर कौन है?
वही सवाल यहाँ पर पूछा गया कि सईद इब्न आमिर फसअलहुम उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वमन सईद इब्न आमिर। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या पूछा? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि वमन सईद इब्न आमिर। बस ये इतना आपको जवाब देना है। उसके बाद है मन क़ाला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मन के माने है हु, क़ाला के माने से, किसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस वाक़ये के अंदर ये होता कि जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चलता कि भाई सईद इब्न आमिर का नाम वहाँ के गरीबों में है, तो वो 1000 दिनार देते, देके बोलते कि जाके ये आपके अमीर को दो। जब ये लोग जाकर अमीर को उमर रज़ियल्लाहु ताला उनके दिए हुए 1000 दिनार देते, तो उन्होंने लेने के बाद उनको बहुत अचंभा नज़र आता। तो वो 1000 दिनार लेने के बाद कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो यहाँ पर वही पूछा गया कि किसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कुरान शरीफ की आयत है। इसके माने हैं हम बेशक अल्लाह ताला के लिए हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। जब तो आप लिखेंगे क़ाला सईदुन, सईद ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके बाद इसका आखिरी क्वेश्चन है आइना वज़्ज़ात दनानीर। तो जो रकम दी गई थी 1000 दिनार, उन दिनारों को कहाँ पर बांटा? तो सईद इब्न आमिर अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं करिए, बल्कि उन्होंने एक लफ्ज़ आपको ढूंढना है वज़्ज़ा। ये वज़्ज़ा इस सेंटेंस, इस फैसले के सुम्मे आखिर में है। आप लिखेंगे फ़वज़्ज़अत दनानीरा अला फ़ुक़राइल मुस्लिमीन। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी ख़त्म है। अब आइए नेक्स्ट पैसेज की तरफ। ये पैसेज है सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में। इस पैसेज में से चंद सवाल दिए गए। इस बहुत ही आसान पैसेज है। इसका पहला सवाल है मन हुआ सुलेमान बिन दाऊद। इसके माने हैं सुलेमान बिन दाऊद कौन थे? तो इसका आंसर पहले सेंटेंस में है आपको काना सुलेमान बिन दाऊद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नबियुल्लाही। यहाँ पर आपका आंसर खत्म है। हम अंडरलाइन कर चुके हैं, देखो वहाँ पर आपका आंसर खत्म हुआ। अब रहा क्वेश्चन नंबर 2, अय्यु शैइन सखरल्लाहु ताला लिसुलेमान बिन दाऊद। इसके माने है अल्लाह ताला ने उनको किन किन चीज़ों का इख्तियार दिया था। तो आपको लफ्ज़ ढूंढना है सखरल्लाहु ताला। तो आपका पहले सेंटेंस के अंदर शुरू होता है सखरल्लाहु ताला लहू कलामुम मिनल इंसी वल जिन्नी, यहाँ तक लिखिदमतिही, वहाँ तक आपका आंसर ख़त्म हो जाए। इसको आपको देखकर लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हल का जवाब आप नाम में देंगे। जाहिर है हल निकाल लेंगे, नाम लिखकर हुआ यारिफू के साथ पूरा जुमला मुकम्मल कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर मा हुआ इस्मो मलिकतु सबा। तो आपको एक लफ्ज़ ना है मलिकतु सबा। क्वेश्चन के अंदर आपको मलिकतु सबा का लफ्ज़ यहाँ पर मिलता कानत तुसम्मा मलिकतु सबा बिल्किस। ये सबा जो है वहाँ की क्वीन थी, उसका नाम था बिल्किस। तो आप अच्छी तरह देख लें कि क्वेश्चन के अंदर आपको एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया मलिकतु सबा। तो यहाँ पर मलिकतु सबा यहाँ पर लफ्ज़ दिखाया गया है। तो आप लिखेंगे कानत समा मलिकतु सबा बिल्किस। इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन है बैन कैफा इज़्दहरत ममलिकतु सबा। तो सबा की जो हुकूमत थी वो किस तरह थी, इसके बारे में पूछा गया। तो इसके अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इज़्दहरत। इज़्दहरत का लफ्ज़ हमको इस क्वेश्चन में ढूंढना है कि कहाँ पर है। पैसेज के अंदर यहाँ पर शुरू है फज़्दहरा। फज़्दहरा ज़मन ये सुबह का सुबह इज़्दहार वासिया क्वेश्चन में पैसेज में देख के लिखेंगे। तो आपका आंसर शुरू हुआ फज़्दहरा से, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको इज़्दहरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आपका ये पैसेज ख़त्म। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ए में हम इससे पहले 12 भी पढ़ चुके हैं। 12 बी के अंदर हमको मैस्कुलिन फेमिनिन पहचानने के लिए कहा गया था। अब 12 ए चूँकि लंबा है, लिहाजा हम 12 ए में आपको 4 किस्म के क्वेश्चन आएंगे आपको। तो हम 12 ए में सब में पहले एक क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, इसको प्रपोजिशन के साथ फिलअप करना है। वहाँ पर हम लिखा हुआ है अल वलदु के माने है बॉय, अल बैत के माने है हाउस। सेकंड है
तो हम नीचे लेंगे अलवलद बॉय इज इन द हाउस, तो हम यहाँ पे लगाएंगे फी, हम यहाँ पे लिखे फी वन निकाल के हम यहाँ पे लगा देंगे अलवलदु फिल बैती, माने होंगे तो बॉय इज इन द हाउस। सेकंड है ज़हबा अहमद अल मस्जिद, अहमद वेंट, अहमद वेयर वेंट अल मस्जिद, टू के लिए एक लफ्ज़ इसके अंदर आया है इला, तो हम लगाएंगे ज़हबा अहमदुन इलल मस्जिदी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 अल हासूब लिह मुदीरिन, कंप्यूटर इज फॉर प्रिंसिपल, तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम फार के लिए लाम इस्तेमाल कर रहे हैं, अल हासूब लि मुदीरिन लगाएंगे। उसके बाद है अर्रजुलु अल बैत, अर्रजुलु के बाद द मैन इज इन द हाउस, तो हम यहाँ पर इन और एक इन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए लगाएंगे अर्रजुलु फिल बैती, द मैन इन द हाउस। इसके बाद खरजत तालिबु अल फसल, खरजा माने वेंट, अल तालिबु द स्टूडेंट वेंट, अल फसल माने क्लास, द स्टूडेंट वेंट फ्रॉम द क्लास, फ्रॉम के लिए एक लफ्ज़ आया है मिन, तो यहाँ पर ये मिन है, हम लगाएंगे खरजत तालिबु मिनल फसली। इसके बाद है अल किताबु अल मकतब, द बुक इज ऑन द टेबल, आन के लिए एक लफ्ज़ आया है अला, तो हम यहाँ पे 6 यहाँ पे लगाएंगे अल किताबु अलल मकतब। अब इसके बाद 5 किस्म के यहाँ पर अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, आपको अच्छी तरह देख लीजिए। इसके अंदर ए बी सी डी ई एफ 5 है, कभी ये देता कभी ये देता कभी ये देता, थोड़ा कंफ्यूज कर दे रहा है इसके अंदर, इसको ज़रा ध्यान से सुनिए। या तो हम जो पहले पढ़े वो देंगे या तो फिर ये देंगे। इसके अंदर है उलाइका औलादुन, ये आपको फिलअप करना है। नीचे 5 लफ्ज़ दिए गए हैं, देखिए हम उसके माने लिख दे, एक लफ्ज़ है हाजा, और एक है उलाइका, और एक है हाजिही, और एक है तिलका, और एक है जालिका, और एक है हाउलाई। हाजा के माने है दिस, मगर ये फेमिनिन एक मैस्कुलिन के लिए बोला जाता। उलाइके के माने है दोज, हाजिही के माने है दिस, लेकिन ये फेमिनिन के लिए बोला जाता। तिलका के माने है दट, ये फेमिनिन के लिए बोला जाता। जालिका के माने है दट, ये हाउलाई है। तो सब में पहले यहाँ पे वो दिया औलादुन, औलादुन के माने है बॉयस, तो आप लिखेंगे उलाइका औलादुन, इसके माने हुए 2000 बॉयस। बी बनातुन, ये बनातुन लफ्ज़ दिया, इससे पहले हम इसके अंदर लेंगे हा उलाई बनातुन, हा उलाई बनातुन, दीज आर गर्ल्स। उसके बाद दिया कलमुन, तो कलमुन से पहले हम, क्योंकि कलमुन मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन होने की वजह क्या है, इसके आखिर में गोल ताने हैं, अलिफ हमज़ा ने या नहीं, तो कलमुन मैस्कुलिन होने की वजह से हम लिखेंगे हाजा कलमुन, हाजा को हम कलमुन के साथ लगा देंगे। इसके बाद आपको बचा कुल्लियतुन, कुल्लियतुन माने कॉलेज है, ये कुल्लियतुन फेमिनिन है क्योंकि इसके आखिर में गोलता है, इसलिए हम यहाँ से लेंगे तिलका, तिलका कुल्लियतुन, दैट इज़ कॉलेज। इसके बाद है तालिबुन को माने स्टूडेंट, ये मैस्कुलिन है, लिहाजा हम लिखेंगे ज़ालिका तालिबुन। अब एक लफ्ज़ हमको बचा है हाजिही, मुअल्लिमतुन के माने है लेडी टीचर, तो लेडी टीचर के लिए हम यहाँ पे लेंगे हाजिही मुअल्लिमतुन, इस तरह ये ख़त्म हो गया। फिर कभी ये देता है, इसके अंदर हम आपको क्या करना है फिलअप करना है, हाजिही कुल्लियतुन हिया मशहूरतुन, हाजिही कुल्लियतुन माने दिस इज़ कॉलेज, हिया के माने शी, मशहूरतुन फेमस, ये अरबी के अंदर कॉलेज के लिए शी बोला जाता, तो हम लिखेंगे हाजिही कुल्लियतुन हिया मशहूरतुन, हिया यहाँ पर हम लिए हैं, हिया यहाँ से हम लेंगे हिया मशहूरतुन। बी है हा उलाई मुहंदिसुना, हा उलाई के माने दीज, दीज आर इंजीनियर्स, माहिरून के माने हैं एक्सपर्ट, तो दीज आर इंजीनियर्स हुम माहिरूना, दे आर एक्सपर्ट, दे के लिए एक लफ्ज़ आया है यहाँ पर हुम, तो हुम को हम ले आकर यहाँ पे लगाएंगे हुम माहिरूना। सी है ज़ालिका उस्ताजुन, दैट इज़ ए टीचर, मुशफ़िक़ुन के माने है काइंड, ही इज़ काइंड, ही के लिए एक लफ्ज़ आया है हुआ, तो हम लिखेंगे ज़ालिका उस्ताजुन हुआ मुशफ़िक़ुन। इसके बाद है डी हाज़िही मुदर्रिसतुन, दिस इज़ लेडी टीचर। अना तालिबुहा, अना के माने होता है आई, तालिबुहा के माने हर स्टूडेंट, ये लेडी टीचर मैं उनका स्टूडेंट हूँ, तो इसके अना के लिए एक लफ्ज़ आया है यहाँ पर अना, आई के लिए, तो आप लिखेंगे अना तालिबुहा, इसके माने हैं आई एम हर
स्टूडेंट। इसके बाद है नहनु तुल्लाबुन मुज्तहिदुना, नहनु के माने हैं वी, तुल्लाबुन मुज्तहिदुना मतलब हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, तो वी आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, वी के लिए एक लफ्ज़ है यहाँ पर नहनु, वी आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। इसके बाद है अंति तालिबतुन, यहाँ पर एक लफ्ज़ है अंति, ये अंति यू फेमिनिन के लिए बोला जाता, अंति तालिबत माने यू आर ए लेडी स्टूडेंट। ये पैसे ख़त्म हुआ। फिर या तो कभी ये देता है, इसके अंदर आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन से फिलअप करना है। यहाँ पर भी ए बी सी डी ई एफ 6 दिया, इसके अंदर नीचे क्वेश्चंस दिया है। पहला है अंता लफ्ज़ दिया, अंता के लिए हम लिखेंगे मन, मन अंता, हु आर यू, तो ये मन ख़त्म होगा। बी में है हाजा किताबुन, तो हम लिखेंगे हल, हल हाजा किताबुन, वेदर दिस इज़ ए बुक। सी तकराओ के माने यू आर रीडिंग, तो हम बोलेंगे व्हाट आर यू रीडिंग, तो हम लिखेंगे माजा तकराओ, आप यहाँ से लेंगे माजा तकराओ, व्हाट आर यू रीडिंग। इसके बाद एक लफ्ज़ है लिमनिल मुल्कुल यौम, ये एक अल मुल्कुल यौम कुरान शरीफ की एक आयत है, ये क़यामत का एक ज़िक्र है जिसके अंदर अल्लाह ताला एक मरहले पे पूछेंगे कि आज कौन कौन बादशाह है, कहाँ कहाँ गए बादशाह गए। ये कुरान की आयत है, इसके माने हैं लिमनिल मुल्कुल यौम, अल मुल्कुल यौम के माने टुडेज़ किंगडम, क़यामत के दिन जो बादशाह रहेंगे वो किसके रहेंगे, तो अल्लाह ताला उस दिन पूछेंगे। तो लिमनिल मुल्कुल यौम आप लगाएंगे लिमन, लिमन के माने हैं फॉर होम टुडेज़ किंगडम। इसके बाद एक लफ्ज़ आता है तज़हबु के माने यू आर गोइंग, तो आप लगाएंगे आईना, आईना तज़हब माने वेयर आर यू गोइंग। और एक लफ्ज़ है आपको शैइन रखीसुन माने चीप थिंग, तो आप लेंगे अय्यो, अय्यो शैइन रखीसुन, विच थिंग इज़ चीप। इस तरह यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 ए ख़त्म हुआ। इसके अंदर आपको 4 किस्म के क्वेश्चन हम पढ़े हैं, इन चारों के अंदर कोई ये 4 दिन का या और एक 4 दिन का या और एक 4 दिन और 4 दिन, इसको इत्मीनान से सुकून से पढ़िए, इसमें कोई टेंशन लेने का नहीं है। इस तरह आपका ये पार्ट नंबर 4 ख़त्म हुआ।